دیکھیں جو پیاسا ہوتا ہے نا وہ خود کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں چل کے آتا. میں تو اپنا سر ہی پکڑ لوں گی اس بات پہ کہ میں بار بار سمجھا رہی ہوں آپ کو. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا آپ لوگوں کے سوال ہو. کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا نام؟ یہ جو میں یہاں پر کھڑی ہوں, یہ جو ڈی جی پی ڈی ایم اے یہاں پر کھڑے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ چیف منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہے. چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر نہیں نکلتے, لیکن وہ اسپیکر سے سی ایم بن گئے. وہ سوئے رہتے ہیں لیکن وہ سی ایم سے پارٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے. وہ سوئے رہتے ہیں لیکن وہ ریکارڈنگ کا منصوبہ سائن کر لیتے ہیں. وہ سوئے رہتے ہیں, وہ پوری دنیا کو بلا رہے ہیں کہ بلوچستان میں میرے لوگوں کی مدد کریں. ایک منٹ, یہ کون سا چینل ہے؟ وش کو لیگل نوٹس جا رہا ہے کہ حکومت بلوچستان کی ترجمان کی شاہ خرچیاں. اور ایک اور یوٹیوب چینل ہے, آج میرے جو لیگل ایڈوائزر ہیں انہوں نے ان کو لیگل نوٹس بھجوا دیا. یہ جتنے بھی ٹورز ہیں, یہ جتنے بھی ہمارے ادھر ادھر ہم جا رہے ہیں, یہ ہم اپنے خرچے پر جا رہے ہیں. اور میرے وہ سرینا ہوٹل کے جو بلز لگا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلدی سرینا ہوٹل کے جو آنر ہیں ان کو بھی لیگل نوٹس اس لیے چلا جائے گا کہ یہ ایک سیکریسی ہوتی ہے آپ کے کلائنٹ کی, وہ لیک آؤٹ کیسے ہوئی. میڈیا پہ موجود رہتی ہوں, کبھی پریس کانفرنسز کی شکل میں, کبھی ٹی وی پروگرامز کی شکل میں, اور فیلڈ ورک بھی بہت ہے. اسی لیے کہ چیف منسٹر نے مجھے نامینیٹ کیا ہے ایز اے فارن ایڈ کوآرڈینیٹر آن ہیومینٹیرین اسسٹنس, تو میری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اور آپ لوگوں کی طرح ہی میں بھی 24/7 کام کر رہی ہوں. اور پھر آف کورس بلوچستان کے جو غریب لوگ ہیں, جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیلاب کی وجہ سے کس قدر تباہی آئی ہے, اور ہم نے آف کورس چیف منسٹر کا یہ ویژن ہے کہ ہم نے اپنے بلوچستان کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑنا, اور جتنے بھی ڈیمیجز ہوئے ہیں ہم نے انہیں کور کرنا ہے. تو آج آپ سب کو یہاں پہ بلانے کا مقصد بھی یہی تھا, اور ڈی جی پی ڈی ایم اے خود نصیر صاحب یہاں پر موجود ہیں کہ جو بھی کوئی ٹیکنیکل کویسچنز آپ کی طرف سے ہوں, تاکہ ہم فیکٹس اینڈ فگرز ایکچولی, کیونکہ پی ڈی ایم اے ایک ایسا ادارہ ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ہمارے ڈی جی صاحب کو کہ جس طریقے سے کتنے 3 مہینے, ڈی جی صاحب 3 مہینے ہو گئے, 3 مہینے سے یہ پری مانسون کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو ابھی تک جاری ہے. ابھی تک اس کی تباہ کاریوں سے ہم نمٹ رہے ہیں. انتظامیہ کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ بلوچستان کی آبادی کم ضرور ہے لیکن پھیلی ہوئی آبادی ہے, اسکیٹرڈ آبادی ہے. وہاں تک پہنچنا موسم کی خرابی کی وجہ سے, زمینی راستہ منقطع ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ انتظامیہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو آج ڈی جی پی ڈی ایم اے کو یہاں بلانے کا مقصد بھی یہی تھا, ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی ٹیکنیکل آپ لوگوں کے کویسچنز آئیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, کیونکہ پی ڈی ایم اے نے 24/7 کام کر رہی ہے اس ایشو پر, تو وہ آپ کے سامنے ہم رکھ سکیں. باقی چیف منسٹر کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ ہماری جو پرومیننٹ این جی اوز آف پاکستان, سب سے پہلے تو میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ متحرک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہ کنٹریز جو کسی بھی ڈیزاسٹر میں ایمرجنسی بیسس پہ مختلف کنٹریز میں کام کرتی ہیں, ان کا بھی تعاون ہمارے ساتھ ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب کا میں یہاں پر ذکر ضرور کروں گی. میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لیے فنڈ ریزنگ کا اعلان کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, یو اے ای ہے, اور بھی جتنے ممالک ہیں جو پرومیننٹ, اور چائنا ہے جو ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, اور جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی بھی ڈیزاسٹر پاکستان میں آتا ہے, یہ سارے ممالک جو ہیں فرنٹ لائنز پہ ہماری مدد کرتے ہیں, ہم ان کے نہایت مشکور ہیں. اور انہیں ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج اگر اس مشکل میں ہمیں ان کی ضرورت ہے تو وہ یہ جانتے ہیں کہ بلوچستان معدنی وسائل سے بھرپور ہے, اور ہمارے میلوں پھیلے سمندر ہیں, ہماری چاندی اگلتی زمین ہے, ہمارے سونا اگلتے پہاڑ ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور آپ کو پاکستان اور بلوچستان مایوس نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر کی میں بڑی اہم بات جس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے, کہ چیف منسٹر کا ایک پیغام میں پورے بلوچستان کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ جو ڈیزاسٹر آپ دیکھیں, نیچرل ڈیزاسٹر کو ہم روک نہیں سکتے,
बेटर प्लानिंग करके हम इसके नुकसानात से ज़रूर बच सकते हैं, इसके नुकसानात को हम कम कर सकते हैं। तो अभी हम रिहेबिलिटेशन का जो एक प्रोसेस है उसमें दाखिल हो रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा जो एक सर्वे का सिलसिला था वो शुरू हो चुका है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक पानी जो है वो खड़ा है। हमारे रिलीफ का जो एक प्रोसेस है उससे हम गुजर रहे हैं, साथ साथ हमने रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसे भी शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ हतमी रिपोर्ट इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आ जाएगी सर्वे के बाद, और हमने अपना काम पहले से ही शुरू कर दिया है। तो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर के मुताबिक हम इसको कंप्लीट करेंगे। जितना भी नुकसान लोगों का हुआ है, मैं ये समझती हूँ कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। काम करने की नीयत होनी चाहिए। जब आपकी नीयत होती है तो अल्लाह आपका साथ देता है, और यही विजन मेरे चीफ मिनिस्टर का है और उनका यही पैगाम है अपने बलूचिस्तान की आवाम के लिए कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जो भी आपके नुकसानात हुए हैं हम उन्हें ओवरकम करेंगे। जी, अब हम आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, और जो भी आपने टेक्निकल फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से बात करनी है वो DGPDM में यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस पे अच्छा जी, इस तरह के जो सर्वे वो जॉइंट सर्वे उसको कहते हैं, उसमें जो डिप्टी कमिश्नर इलाके का वो उसके चेयरमैन है, बाकी उसके साथ NDMA का नुमाइंदा है, PDMA का है, और प्लस हमारा पाकिस्तान आर्मी, FC बलूचिस्तान और हमारे जितने भी लैंड डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर, PG, इरीगेशन, लाइव स्टॉक, इनके नुमाइंदे भी उनके साथ है। तो आपने जो परसेंटेज का पूछा तो 50% से अबव जो है ना सर्वे कंप्लीट हो गया, और होपफुली के विद इन अ वीक पीरियड हमारे पास जो है मुकम्मल सर्वे जो है ना। यहाँ मैं एक ये चीज़ ऐड करूँ, जिस तरह आपने मेरी बात सुने, आपने क्वेश्चन किया कि हमारे सर्वे जो है वो कब कंप्लीट। देखें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसके DCs जो हैं उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं, उसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें शामिल हैं। जिस तरीके से PDMA है, NDMA है, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, PHE डिपार्टमेंट है, FC है, आर्मी है, तो ये सारे जो स्टेक, OCHA के भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव, UN OCHA के भी उसमें हैं। तो ये सर्वे उनके मुताबिक हो रहा है, कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाएगा, एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। इसको हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं, देखें यहाँ बड़ा अहम पैगाम एक बार फिर देखें, जो प्यासा होता है ना वो खुद कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं चल के आता। तो अगर मैं इस्लामाबाद में थी, मैं तो आपकी मालूमात में इजाफा करती हूँ, मैं कराची में भी थी, मैं लाहौर में भी थी, मैं इस्लामाबाद में थी, मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं UK जा रही हूँ, मैं UAE जा रही हूँ। मैं क्यों जा रही हूँ? आई एम अ फॉरेन एड कोऑर्डिनेटर ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि हम वहाँ पर बलूचिस्तान के हालात बताकर लोगों को इंगेज करें, और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ले के आ सकूँ, इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। और आपने जिक्र किया कि वज़ीर आला जो हैं वो CM हाउस से बाहर ही नहीं निकलते। पता नहीं आप लोगों की मालूमात में मैं किस तरीके से इजाफा करूँगी। देखें, ये जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये जो DGPDM यहाँ पर खड़े हैं, ये कौन है? ये चीफ मिनिस्टर की टीम का हिस्सा है। चीफ मिनिस्टर इज़ द एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस। सबसे पहले तो आप सब ये समझें, चीफ मिनिस्टर जब ये प्री मॉनसून शुरू हुआ था, चीफ मिनिस्टर ने हंगामी इजलास बुलाकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की ड्यूटी लगा दी। मेरे चीफ मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि किसी की नाअहली और नालायकी, चाहे वो जिस ग्रेड का भी ऑफिसर होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर नालायकी और नाअहली सामने आई तो वो ऑफिसर अपने आप को सस्पेंड समझे। तो चीफ मिनिस्टर, देखें, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। वी आर द टीम ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और हम आपको हर जगह नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से PDMA का आपने खुद तारीफ की, PDMA कौन है? ये DG साहब यहाँ पे खड़े हैं, किसकी टीम का हिस्सा है? ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ही हम काम कर रहे हैं। और आप चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला हाउस से बाहर नहीं निकलते, लेकिन वो स्पीकर से CM बन गए। वो सोए रहते हैं लेकिन वो CM से पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। वो सोए रहते हैं लेकिन वो रेकॉर्डिंग का मंसूबा साइन कर लेते हैं। वो सोए रहते हैं, वो पूरी दुनिया को बुला रहे हैं कि बलूचिस्तान में मेरे लोगों की मदद करें। मुझे समझ नहीं आती कि क्या आप लोगों के सवाल होते हैं। क्या हम बार बार आपको कह रहे हैं तनकीद बराए तनकीद को छोड़ दें,
तनकीद बराए तामीर बहुत अच्छी है, उसको आप लोग लेके आएँ। हम भी आपकी हौसला अफजाई करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं आप लोगों की एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों की मदद के लिए बैठे हैं यहाँ पर। वी आर योर सर्वेंट्स, हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे हैं जी। मैडम, ये कि 3 महीने के बाद आप यहाँ नजर आ रही है, दूसरा ये डायरेक्टर जनरल, मैं तो अपना सर ही पकड़ लूँगी इस बात पे कि मैं बार बार समझा रही हूँ आपको। अच्छा नहीं, ये मैडम आप जो लाहौर बता रहे हैं, न्यूयॉर्क बता रहे हैं, अमेरिका बता रहे हैं, तो क्या मैडम ये इखराजात बलूचिस्तान हुकूमत बर्दाश्त करेंगे? अच्छा, हाँ बहुत, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? आपका नाम? आज़म उल्फत बोल, ठीक है। अच्छा देखें आज़म, बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया, बहुत अच्छा किया। एक मिनट, ये कौन सा चैनल है? वश को लीगल नोटिस जा रहा है क्योंकि वश ने अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे ख़िलाफ़ एक बात लगाई है कि हुकूमत बलूचिस्तान की तर्जुमान की शाह खर्चियाँ, ठीक है। और एक और यूट्यूब चैनल है, आज मेरे जो लीगल एडवाइज़र हैं उन्होंने उनको लीगल नोटिस भिजवा दिया, ठीक है। और आपकी इत्तला के मुताबिक आज़म, ये जितने भी टूर्स हैं, ये जितने भी हमारे इधर उधर हम जा रहे हैं, ये हम अपने खर्चे पर जा रहे हैं, हुकूमत बलूचिस्तान के कोई खर्चे पे नहीं जा रहा है। बाहर भी अगर हम टूर्स कर रहे हैं तो ये हम अपने खर्चे पर कर रहे हैं। और ये भी सुन लें आप, ऐसी हुकूमत आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। ये अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर अब्दुल कदूस बिज़िंजो कि उनकी तर्जुमान आपके सामने खड़ी है और दावे से ये कह रही है कि प्रूफ लेके आए कि अगर मैंने हुकूमत से 1 रुपया भी लिया है। ये लीगल नोटिस ये वश को भी चला गया है, आज एक और यूट्यूब चैनल है उसको भी चला जाएगा। और मेरे वो सरीना होटल के जो बिल्स लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सरीना होटल के जो ऑनर हैं उनको भी लीगल नोटिस इसलिए चला जाएगा कि ये एक सीक्रेसी होती है आपके क्लाइंट की, वो लीक आउट कैसे हुई है, ठीक है। तो ये मेरे लीगल एडवाइज़र जो हैं वो इसको देख रहे हैं। और बाकी मैं आपको दोबारा से मैं आपको ये बता दूँ कि हम हुकूमत बलूचिस्तान के पास वैसे भी रिसोर्सेज की बेहद कमी है। मेरा अमेरिकन एम्बेसी में मीटिंग हुई थी, अब हम बहुत जल्दी उनको लिस्ट दे रहे हैं कि हम 4-5 लोग जो हैं हम वहाँ पर जा रहे हैं इंगेज करने के लिए वहाँ से लोगों को। और हम उनसे भीख मांगने नहीं जा रहे, हम वहाँ से प्रोजेक्ट्स लेने जा रहे हैं। और हम उनको ये बताने जा रहे हैं कि आज अगर वो हमारी मदद करेंगे तो कल हम उनके लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, ठीक है जी। मैडम ये कहूँगा, सलीमा होटल वाले आपको इसकी बात की, ये खबर अखबारों समेत मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स की भी ज़िक्र पड़ी हुई है, सोशल मीडिया की, और बताया गया कि आपने 2 से 2.5 माह में 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए मुख्तलिफ रिहाइश और खाने पीने की। 1.5 करोड़? 1 से 1.5 करोड़। 1 से 1.5 करोड़? जी जी, 2.5 महीने में मेरी ज़ात पर? जी जी जी। इसकी खाली बताइए कि इस खबर में सदाकत कितनी है, और अच्छा, अगर इसके बिल्स पे किए तो उम्मीद है, मुझे उम्मीद थी कि आप इसके बिल्स अपने साथ लेके आती भी, ये मैंने खुद पेमेंट नहीं, इस पे मैं अलहदा करूँगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। वो मैं सबूत भी आपके सामने रखूँगी, मैं अलहदा इंशाल्लाह वो उसके बिल्स आपके सामने रखूँगी। जिस तरह मैंने आपको कह दिया कि ये जो ये चैनल वश है और एक और यूट्यूबर है, उसको लीगल नोटिस आज मेरे लीगल एडवाइज़र ने भिजवा दिए हैं। और इसी तरीके से सरीना के ऑनर को भी हम इंशाल्लाह भिजवा रहे हैं, क्योंकि देखें कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी वायलेशन कैसे हुई है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ये आपको मैं इसके हवाले से अलहदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगी और उसमें आप लोगों को एविडेंसेस दूँगी। और मैं दोबारा एक बार आप लोगों को ये कह रही हूँ कि जो भी ख़र्चे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम टूर्स कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे वज़ीर आला हैं, चाहे कोई भी हमारी हुकूमत का हिस्सा है, वो अपनी जेब से कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैं अपनी जवाबदेह हूँ, मैं अपनी ट्रैवल्स का जवाबदेह हूँ, वज़ीर आला हैं। और हमारे जो वज़ीर आला हैं, मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि ही इज़ अ विजनरी लीडर, ठीक है। और उनका विज़न मेरी सूरत में आप लोगों को नज़र भी आ रहा है। और ये भी मुझे खुशी हो रही है बल्कि यहाँ पर, और ये जीत है मेरे चीफ़ मिनिस्टर मीर अब्दुल कदूस बिज़िंजो की, कि आप लोग अपने मुंह से PDMA की तारीफ़ कर रहे हैं और DG साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये है उनकी टीम और ये है उनका विजन जी। लास्ट क्वेश्चन। 1 माह से जो है बारिशों का सिलसिला थम गया है और आपने कहा रेस्क्यू रिलीफ का अमल खत्म हो गया, रेस्क्यू नहीं, रिलीफ का जारी है। कल ही जो है PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अफराद जांबा को, कहाँ से आ रहे जांबा को रहे, अगर वो ऑपरेशन सारे खत्म हो गए, और वबाई अमराज भी फूट पड़े सारे। और वबाई अमराज, एक मिनट DG साहब, वबाई अमराज तो वाकई फूट पड़े, मेरे सामने आप देख रहे हैं, मैं ख़ुद भी खांस रही हूँ, मेरा अपनी भी तबीयत
ख़राब ہے اور काफ़ी दिनों से ख़राब है. ये वबाई अमराज तो वाकई देखें फ्लड पूरे पाकिस्तान में आया हुआ है और ये वबाई अमराज और ये एक ऐसा डिज़ास्टर है. फ्लैश फ्लड्स एक ऐसा डिज़ास्टर है कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में आए बहुत सी तबाही लेके आता है. और इस वक्त हमें काम ये करना चाहिए कि हम सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर यूनाइटेड होकर जो अफेक्टीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए. और जो कुछ भी हो सकता है हमसे, चाहे मुंह से एक पॉजिटिव लफ्ज़ भी आपके लिए चैरिटी होगा, तो हम उनकी तरफ ध्यान करें और उनका साथ दें. जी अभी आप बोलें. 1 मिनट डीजी साहब आपकी बात करें. 1 मिनट आप जी. क्वेश्चन आप कहे थे ना कि डेथ केसेस का डेथ केसेस अभी भी आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं डेथ केसेस यकीनन कुछ हमारे पास इंजर्ड पर्सन्स भी है, उनकी भी एक तादाद है. जो फर्स्ट एड वाले थे उनको तो हमने फारिग कर दिया फ्रॉम हॉस्पिटल्स. कुछ इंजर्ड पर्सन्स भी है, कुछ इस तरह भी है कि कहीं पे हजार पानी अभी भी कई जगहों पे खड़ा है. दीवारें जो है ना कहीं पे गिर जाती है या कहीं पे जो है ना वो कोई तालाब है वहाँ पे जो है ना पानी खड़ा है. लोगों ने वहाँ पे जो है ना कोई मट्टी वहाँ से ले गए, कोई बजरी ले गए, बच्चे वहाँ पे खेलते या जाते. कुछ इस तरह के केसेस भी जी उसमें अवेयरनेस का जो है इशू. और हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भी जारी किया कि इस तरह के जो जगह जैसे पिकनिक पॉइंट है वहाँ पे जो है ना हमने पाबंदी लगाई. डिप्टी कमिश्नर उसको देख रहे. या कहीं भी इस तरह के तालाब बने हुए वहाँ पे भी कोशिश कर रहे. चूँकि मैं फिर कहूँगा कि मतलब एरियाज बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से जो आप केसेस की बात है उस तरह के केसेस हमें रिपोर्ट हुए. थैंक यू सो मच. चले लास्ट क्वेश्चन एक आप भी करें. देखिए मेरी बात सुने. मैं हूँ तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान. मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि आज जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और मेरी आवाम को ये पैगाम दो कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तुम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा. तुम लोगों के जो भी नुकसानात हुए हैं मैं उन्हें लाजमी पूरा करूँगा. दैट्स इट. इस सवाल का जवाब फिर नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में. जी आपने क्वेटा और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावे की पीडीएम में एक हद तक रिलीफ पहुंचा रही है जो उसकी जिम्मेदारी है. हम ये देख रहे हैं जो सैलाब से मुतासर इलाके वहाँ पे वबाई अमराज टूट पड़े और जिनसी टेंटों में जिनसी हरासगी की भी रिपोर्ट होने लगी. ठीक है. सिक्योरिटी के हवाले से अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है. देखें अब ये सैलाब की वजह से हम इसमें मसरूफ़ हो गए थे. नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो हमने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी अनाउंस करने वाले हैं. बस ये 1 आध महीने में हम ये सैलाब की तबाहकारियों से ज़रा फारिग हो जाएँ तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह आपने कहा जिनसी हरासगी और ये सारी चीज़ें. तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे माशरे को तरबियत की बेहद ज़रूरत है. तो हमने बहुत से इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे इस तरह काम हैं हम कर रहे हैं. और इंशाल्लाह फिर मैं बाद में दोबारा रिपीट करती हूँ और इससे मैं इख्तिताम करती हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि मेरे चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि कहीं भी कोई नाअहली या नालायकी नज़र आएगी वो ऑफिसर अपने आप को सस्पेंड समझे. जो भी ये मसाइल आप लोग उजागर कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की बड़ी गहरी उस पर नज़र है और इंशाल्लाह ये मसाइल व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे मसाइल हम हल करेंगे. हम यहाँ बैठे ही आपके मसाइल हल करने के लिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.